Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by University of Turin, Italy. So University of Turin is a public university of Italy and it is one of the top public universities of Italy, and they are offering fully funded scholarship for bachelor's and master's students. So if you are looking for a fully funded scholarship in Italy, you should watch this video till the end. So before jumping into our application process, first I would like to discuss some key details about this university. So as I mentioned, University of Turin is a public university of Italy, and public universities are usually the most preferred universities. Instead of going to private university, you should always go to the public university because it is cheap and it is also good ranking wise. So if you're planning to study in any university, you should get admitted into public university. So because of it being a public university, you will be eligible for a fully funded regional based scholarship, which is a need based scholarship, and you don't need to have a high GPA, etc. You just need to show them that you can't afford these fees, etc., and you need that scholarship. And out of 100 students, 99% students get the regional based scholarship if they get admitted into the public universities of Italy. So if you get admitted in any public university of Italy except one or two, then you are eligible for a regional based scholarship, and the regional based scholarship are given to almost all of the students. If we talk about its history, so it was built in 1404, which makes it quite a historical and old university, which means it is a good university. If we talk about its ranking, so according to QS World University Rankings 2025, it has been ranked at the position of 371, means it falls under top 400 universities of the world. So it must be a great university and it must be one of the top universities of Italy. If we talk about its acceptance rate, so it is around 50%, which is not a bad acceptance rate, and the minimum CGPA required is 2. If we talk about the English language requirements, so you don't need any IELTS or English test. You can just simply apply with your English proficiency certificate, which you can get from your university or college. So these are some details about the university. Now we'll come onto the official website of the university, and from here we can apply and see all of the information about the programs and scholarships. If we talk about the scholarships, so if you come onto the scholarships page, so here you can see multiple scholarships. You can read the details about the scholarship by clicking on each of the scholarship. There are some merit based scholarship, and then there are regional scholarships, so you can read the details about all of these scholarships. Now if you want to check out the list of programs that are offered by this university, so we'll come on to the next page of this website, which is about degree programs in English. So here you can find out all of the degrees that are offered by this university. First of all, if we check out the undergraduate degree, so they're offering only 2 undergraduate degrees for international students in English. So if you want to study in English, not Italian, then you can get admitted in any of these 2 programs. And if you want to study masters, so for masters there are multiple programs. There are a lot of programs which you can choose from. So if you want to study bachelors, then you have only 2 options in this university, and if you want to study masters, then you have a lot of options. You can choose any of these options from here out of this list. So now we'll talk about the application process. So for that, we'll come on to the application portal. I will also attach the link of this portal in my YouTube videos description. So you can just click on that link and the link will take you to this portal. And from here, you can apply for any program that you want in this university. So let's start our application process. First of all, we'll click on this sign in/register button. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट बटन आपके पास जो है ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा. हेयर यू विल क्लिक ऑन आई एम अ न्यू एप्लीकेंट बटन सिंस वी आर न्यू यूज़र्स. उस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर लोगे, वट एवर यूर ईमेल एड्रेस इज़, एंड देन आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे. रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है ये लोग आपको बता रहे हैं कि वी हैव सेंट यू अ वन टाइम लॉगिन लिंक. उस लिंक के थ्रू जो है आप अपना प्रोफाइल वेरीफाई करो और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो. So here you can see the message. I've received the message in my so I have received the message in my inbox, and from here by clicking on that link I'll complete my registration.
आपको जो है लिंक जब रिसीव होगा तो आपने जस्ट सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है और अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सिंस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको अप्रूव पे क्लिक कर लूँगा। अप्रूव करने के बाद जो है आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में जो है आपने सिंपली यहाँ पे आई हैव रेड द प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे उस पोर्टल में। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम यहाँ से चूज़ करना है। तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप जो है अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर्स पढ़ना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ना चाहते हो। बैचलर में आपके पास 76 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके पास इटालियन में भी टॉट किए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं। फिर आपके पास मास्टर्स में 91 प्रोग्राम्स है। तो इसमें जो है हम अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फॉर एग्जांपल मैंने जो है अंडर ग्रेजुएट में पढ़ना है तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ करूँगा। फिर एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। फिर यहाँ पे जो है स्टडी मोड्स में मैंने स्टडी मोड में फुल टाइम चूज़ करना है और देन लैंग्वेजेस में मैंने जो है जस्ट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना है। सिंस हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और हम इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे मैं फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो जो है बैचलर्स के प्रोग्राम्स आ जाएंगे जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। अब इनका एप्लीकेशन जो है वो 24 फरवरी को ओपन होगा। तो बैचलर्स के एप्लीकेशंस अभी ओपन नहीं है, अभी जस्ट मास्टर्स के एप्लीकेशंस ओपन है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में तो आप 24 फरवरी 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करोगे और फिर फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास मास्टर्स के सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो आपके लिए ओपन है और जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी प्रोग्राम्स है और ये सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है सिंस मैंने ऊपर लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी मर्जी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है अप्लाई करना है यहाँ पे कोई सा भी रैंडम जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है मटेरियल साइंस में तो मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस के आगे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लूँगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा जो है कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है मेरे एप्लीकेशन में। अब मेरे पास यहाँ पे एड मोर चॉइस का भी ऑप्शन है, मींस कि मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए एक ही एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकता हूँ। अब अगर मैंने जो है दूसरे प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे एड मोर चॉइस पे क्लिक करूँगा। एड मोर चॉइस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे दोबारा से लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप अपनी मर्जी का दूसरा प्रोग्राम भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं यहाँ पे इसको भी चूज़ कर लूँगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। अब मेरे पास जो है दो प्रोग्राम्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं और मैक्सिमम आप इसमें दो ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो एक एप्लीकेशन में। तो अब मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट जो है मटेरियल साइंस है और सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं इसको मूव अप मूव डाउन करके अपनी प्रायोरिटी चेंज भी कर सकता हूँ। अब हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोफाइल का है तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा। सबसे पहले मेरा फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे जो कि मेरा उसामा है फॉर एग्जांपल। अब मेरा अगर मिडिल नेम कोई है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, अगर नहीं है इसको एम्प्टी छोड़ दूँगा। फिर लास्ट नेम आपने यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप का बताया हुआ है तो अगर आपके पास आई डी कार्ड है आई डी कार्ड चूज़ कर लो, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट चूज़ कर लो। मैं यहाँ पे पासपोर्ट चूज़ करता हूँ। पासपोर्ट चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख लोगे, जो भी आपका नंबर होगा। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है आप इशू डेट यहाँ पे लिख लोगे। इशू डेट वो डेट होगा जब आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा तो या आप उससे देख के यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी आप पासपोर्ट से देख के ही यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू चूज़ करोगे कि कौन सी कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू किया था। तो हमारा पाकिस्तान ही है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आई कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप जो है इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो सिंस इसके साथ रेड मार्क नहीं है। जिन भी ऑप्शन के साथ आपको ये रेड मार्क नज़र आ रहा है वो फिल करना लाजमी होगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन है जेंडर का। जेंडर में आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल हो या फीमेल। उसके बाद जो है आपके पास सिटीजनशिप का ऑप्शन है तो इसमें आप अपना सिटीजनशिप चूज़ कर लोगे, अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस है तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप वो कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी हो, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो कोई और है, जैसे दुबई है, सऊदी है या यूरोप में किसी जगह में है, तो आप जो है यहाँ पे फिर दूसरी कंट्री चूज़ करोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। तो मेरा रेजिडेंस भी पाकिस्तान में ही है तो मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आई हैव अ डबल सिटीजनशिप का ऑप्शन में है तो अगर आपके पास जो है दो सिटीजनशिप है दो कंट्रीज़ के तो फिर आप यहाँ पे आई हैव अ डबल सिटीजनशिप चूज़ करके दूसरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने डबल पे चूज़ किया तो मेरे पास दूसरी सिटीजनशिप की ऑप्शन भी आ गई है।
उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, नीचे आपसे जो है बर्थ की डिटेल्स पूछी गई है। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ वैसे चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करनी है कि कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ में आपने वो सिटी लिखनी है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। यहाँ पे जो है मैं रैंडम कुछ भी लिख लेता हूँ, आपने वो सिटी ही लिखनी है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ। उसके बाद जो है फॉर्मल फ़ोटो है, तो यहाँ पे आप जो है क्लिक टू सेलेक्ट योर फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लोगे। जो सी भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी फॉर्मल, मैं यहाँ पे वैसे रैंडम फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स में जो है आप अपने कॉन्टैक्ट्स की डिटेल डालोगे। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप कैसे लिखोगे, पहले आप अपना इंटरनेशनल कंट्री कोड लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का +92 है तो मैं +92 लिख लूँगा। उसके बाद जो है आप आगे फर्दर जो है अपना नंबर लिख लोगे। मैंने यहाँ पे डमी नंबर लिखा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना स्काइप यूज़र नेम लिख लोगे या स्काइप आईडी जो है यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। वो करने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा होम यूनिवर्सिटी का। होम यूनिवर्सिटी की डिटेल्स में जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालोगे। सिंस मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपके पास जो है हाई स्कूल मीन्स के आपके कॉलेज का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप फिर कॉलेज की सारी डिटेल डालोगे। अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने बैचलर्स यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स डालूंगा कि जहाँ से मैंने बैचलर्स किया है। सबसे पहले मेरा जो है यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ। आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नेम जो है ऑफिशियल यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है नीचे नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपसे पूछा गया है या फैकल्टी, तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट से अपना कोर्स पढ़ा है तो आप उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोलॉजी के डिपार्टमेंट से जो है वो कोई प्रोग्राम पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपने नीचे कंट्री चूज़ करनी है कि कौन सी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपने वो कंट्री चूज़ करनी है। उसके बाद जो है प्रोग्राम डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन है, तो लेवल ऑफ एजुकेशन में आपने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ करना है। बैचलर्स डिग्री चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करोगे। मीन्स कि आपके कौन सी फील्ड की थी स्टडी, तो मैं यहाँ पे दोबारा जो है बायोलॉजी लिख लूँगा कि मेरी जो है बायोलॉजी ही थी। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम नेम पूछा गया है, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है बॉटनी में अगर बैचलर्स किया है तो मैं यहाँ पे बॉटनी लिख लूँगा। स्टडी प्रोग्राम नेम कंप्लीट जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मैंने जस्ट जो है बॉटनी लिखा है, आप अपने पूरे प्रोग्राम का नेम यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ है, तो स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ में आप वो ईयर लिखोगे जब आपने अपना बैचलर स्टार्ट किया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ईयर भी चूज़ करना है, मंथ भी चूज़ करना है और डे भी चूज़ करना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ग्रेड पॉइंट एवरेज पूछा गया है। मीन्स कि आपका CGPA, तो आपका जितना भी CGPA होगा आप यहाँ पे उसको लिख लोगे। अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है एजुकेशन का। अब एजुकेशन के सेक्शन में जो है आप अपने एजुकेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेनी है। सबसे पहले जो है आपने कौन सी डिटेल्स डालनी है, सबसे पहले आपने अपनी हाई स्कूल मीन्स के कॉलेज की डिटेल डालनी है। उसके लिए आप यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम लिख लोगे, जोन से भी आपके कॉलेज का नेम होगा। उसके बाद जो है आप अपना प्रोग्राम नेम यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जिनके साथ रेड मार्क नहीं है वो सारे ब्लैंक्स फिल करना कंपलसरी नहीं है। जैसे इनके साथ रेड मार्क नहीं है तो ये सारे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस किया है, मैंने अपना कॉलेज की जो है FSC कंप्यूटर साइंस में किया है, तो मैं यहाँ पे ICS लिख लूँगा, कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा कि मेरा प्रोग्राम नेम जो था वो कंप्यूटर साइंस था। उसके बाद जो अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस लिख लूँगा, या मैं जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिख लूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे अपने सर्टिफिकेट का नंबर लिख लोगे, उसका इशू डेट लिख लोगे, उसका इशूड बाय में वो अथॉरिटी लिख लोगे जिन्होंने इशू किया, इशूड लोकेशन में वो लोकेशन लिख लोगे जहाँ पे इशू हुआ। तो ये जो है फिल करना लाजमी नहीं है, ये नीचे वाले। अब जस्ट यहाँ पे जो है प्रोग्राम नेम लिख लो और डिग्री का नाम लिख लो। उसके बाद जो है आप ऊपर यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्टडीज़ में चूज़ करोगे कि आपका जो है वो कॉलेज ख़त्म हो गया है या नहीं। तो हमारा ख़त्म हो ही गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिनिश चूज़ करेंगे। अगर आप जो है अभी भी अपना जो है वो FSC कर रहे हो, बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप इन प्रोग्रेस यहाँ पे फिर चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ चूज़ करोगे कि कब आपने अपना जो है FSC स्टार्ट किया, अपना इंटरमीडिएट स्टार्ट किया। उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन की डेट लिखोगे कि कब आपने जो है अपना FSC ख़त्म किया या ख़त्म करने वाले हो फ्यूचर में अगर आप अभी भी कर रहे हो। उसके बाद नॉमिनल लेंथ है, तो हमारा जो है
2 ईयर्स होता है तो हम यहाँ पे 2 ईयर्स ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो 2 ईयर्स का होता है पाकिस्तान में। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी पूछा गया है, तो इसमें आप जो है यहाँ पे फेस टू फेस चूज़ कर लोगे कि हमने फिजिकली ही अपना कॉलेज पढ़ा है, हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा। उसके बाद कंट्री है तो आप वो कंट्री चूज़ करोगे जहाँ से आपने अपना कॉलेज पढ़ा। उसके बाद जो है स्टडी लैंग्वेज है तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही चूज़ करेंगे, चूँकि पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जीपीए स्लैश एवरेज ग्रेड, तो आप यहाँ पे अपना परसेंटेज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 80% है तो आप यहाँ पे सिंपली 80% लिख लो। उसके बाद जो है आप आओगे नीचे, नीचे आपसे पूछा गया है इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर, तो इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी मज़ीद डिटेल्स डालोगे, जिसमें आप अपनी बैचलर्स की सारी डिटेल्स डालोगे, जिस तरह हमने इस दूसरे होम यूनिवर्सिटी के सेक्शन में अपनी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डाली थी। यहाँ पे हम थोड़ी और डिटेल्स में जो है अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डाल लेंगे। जैसे मैंने ऊपर सेकेंडरी स्कूल की डाली है, आप सिंपल यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन में जो है बैचलर्स डिग्री चूज़ करो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखो, फिर प्रोग्राम का नेम यहाँ पे लिखो, फिर अपनी डिग्री का नाम लिखो कि बीएस इन बॉटनी, बीएससीएस किया या जो भी किया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डिग्री का नंबर लिखो, अगर आपको डिग्री मिल चुकी है, डेट लिखो, इशूड बाय वगैरह लिख लो। उसके बाद जो है स्टेटस ऑफ स्टडी में जो है अगर आप अभी 7th 8th सेमेस्टर में हो तो इन प्रोग्रेस लिख लो, अगर फिनिश कर चुके हो तो फिनिश्ड लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ का स्टार्ट डेट लिखोगे, कब आपने अपना बैचलर स्टार्ट किया। उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन डेट लिख लोगे, कब आपने अपना बैचलर्स ख़त्म किया या फ्यूचर में कब ख़त्म करने वाले हो। फिर नॉमिनल लेंथ में आपने यहाँ पे 4 ईयर्स से चूज़ करना है, चूँकि पाकिस्तान में हमारी जो है वो बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर्स की होती है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी में आप चूज़ करोगे, अगर आपने फ़ेस टू फेस पढ़ा है फ़ेस टू फेस चूज़ कर लो, अगर ऑनलाइन पढ़ा है डिस्टेंस लर्निंग की है तो वो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी है, कौन सी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया। फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपने स्टडी लैंग्वेज में चूज़ कर लेनी है। उसके बाद ग्रेड आपने यहाँ पे लिख लेना है सीजीपीए कि आपका कितना सीजीपीए था। इसी तरह अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर पे क्लिक करके मास्टर्स की डिटेल भी डाल सकते हो, और इसी तरह आप मज़ीद अपने सारे एजुकेशन की डिटेल भी डाल सकते हो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या कोई अदर चीज़ें भी है। उसके बाद सेलेक्ट दी डॉक्यूमेंट्स यू आर अबाउट टू अटैच में यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करनी है। अगर आपको डिग्री मिल चुकी है, अगर आपको डिग्री नहीं मिली तो आप इसको जो है सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट तो लाजमी सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो हम अपलोड करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे सिलेबस कोर्स डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। सिलेबस मींस कि आपकी जो आपने बैचलर्स किया है उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपने प्रोग्राम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है कॉमसेट से, तो मैं वहाँ पे कॉमसेट की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाऊँगा, कंप्यूटर साइंस वाले जो है वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस का जो है वो प्रोग्राम वाली जगह पे जाऊँगा, उनका जो है वहाँ पे उनका सिलेबस डाउनलोड कर लूँगा कि इस डिग्री में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। अगर वो नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अदर क्वालिफ़िकेशन को भी टिक कर लोगे, क्योंकि हम जो है मज़ीद एफएससी के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेजेस में सबसे पहले आपकी नेटिव लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, मीन्स कि आपकी मदर टंग, आपकी मादरी ज़ुबान, तो आप यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पर क्लिक करोगे, और फिर आप यहाँ पे फ़ॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करोगे। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे प्रोफिशेंसी चूज़ करनी है। प्रोफिशेंसी A1 से लेकर C2 तक है, तो A1 बहुत बेसिक होता है, उसके बाद C2 जो है बहुत एडवांस्ड होता है। तो आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चूज़ कर लो, C1 C2 या B2 में, कि आपकी इंग्लिश कैसी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट में चूज़ करोगे कि आपके पास क्या है प्रूफ करने के लिए। तो अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो वो यहाँ से वो टेस्ट चूज़ कर लो, IELTS टॉफिल वगैरह। अगर टेस्ट नहीं दिया, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे अदर चूज़ कर लो। वो लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा रेफरेंसेस का। अब रेफरेंसेस के सेक्शन में आपने अपनी रेफरी की डिटेल डालनी है। रेफरी वो होता है जिन्होंने आपको जो है आपके बैचलर्स में पढ़ाया है, या अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके एफएससी में आपको पढ़ा है, मींस कि आपके पुराने प्रोफेसर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो आपके बिहाफ पे आपका रेफरेंस लेटर जो है वो फिल करेंगे। आपने सिंपली जस्ट उनका नेम यहाँ पे लिखना है। नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल लेना है, जो भी उनका ईमेल एड्रेस होगा। यहाँ पे जो है मैं रैंडम कुछ भी डाल लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे आस्क फॉर अ रेफरेंस पे क्लिक कर लेना है, तो उनको जो है उनके ईमेल एड्रेस पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू जो है वो आपके लिए आपका रेफरेंस लेटर जो है फिल करके सबमिट करेंगे।
जब वो आपके बिहाफ पे रेफरेंस सबमिट करेंगे तो फिर आपका जो है वो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा, तभी जब वो आपके बिहाफ पे रेफरेंस सबमिट करेंगे, जब आप इसको सबमिट करोगे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा मोटिवेशन का। मोटिवेशन के सेक्शन में आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। मोटिवेशन जो है वो आपका 1000 से लेकर 3000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, आप इस प्रोग्राम से क्या गेन करोगे इस स्टडीज़ से। उसके बाद जो है आप अपना बैकग्राउंड बताओगे कि क्यों मैं इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ, क्यों मैं इस प्रोग्राम के लिए अच्छा कैंडिडेट हूँ। उसके बाद जो है आपने फ्यूचर गोल्स का बताना है कि ये प्रोग्राम कैसे मेरे फ्यूचर गोल्स में मेरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो है आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख लोगे। मोटिवेशन लेटर लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन डॉक्यूमेंट्स पे आओगे। डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपको कुछ नहीं आएगा, आपने जस्ट यहाँ पे उससे अदर के सेक्शन में आ जाना है। अदर के सेक्शन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपके पास चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट में आपने फिर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पे क्या अपलोड करना है, सबसे पहले इंटरमीडिएट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट का ये मैं बता दूं कि हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ प्रोग्राम शायद टेस्ट रिक्वायर्ड करें, कुछ प्रोग्राम जो है खुद ही टेस्ट आपसे लें। तो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो है ये प्रोग्राम पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद जो है नीचे आपसे जीपीए स्केल का पूछा गया है और जो है आपके क्रेडिट आवर्स का पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अपनी जो है जी मार्किंग स्कीम वगैरह और क्रेडिट आवर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड नहीं करना चाहते तो ये फिल करना लाजमी नहीं है। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो आपकी डिप्लोमा और आपका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारे होने चाहिए अगर आप अपनी डिग्री ख़त्म कर चुके हो। लेकिन हम अपनी डिग्री ख़त्म नहीं कर चुके, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे आई एम करेंटली स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, आई हैव अटैच्ड माई ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट टू माई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो है आपने जस्ट अपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने हैं और फिर आपने ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो, अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली, अगर आपको आप ख़त्म कर भी चुके हैं, आपको डिग्री नहीं मिली, तो आप जो है ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे जस्ट अपने मार्कशीट्स, अपने ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो अपलोड कर लो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया है कि आई हैव अटैच्ड द डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट एंड अदर सप्लीमेंट्स टू माई एप्लीकेशन। तो अगर आपको जो है सारे चीज़ें मिल चुके हैं और आपने सब अपलोड कर दी हैं, तो आप फिर यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपको जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का बताया है। तो हमारा जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होते हैं, तो हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेड लैंग्वेज में जो है हमारे यहाँ पे इंग्लिश आपको नज़र आ रहा है कि वो ट्रांसलेशन में एक्सेप्टेड है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पासपोर्ट का बताया है, तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर लेना है और ऊपर अपना ऑप्शन चूज़ कर लेना है कि आई हैव अटैच्ड माई पासपोर्ट और आई डू नॉट हैव इटालियन रेजिडेंस। उसके बाद जो है आपने ऊपर क्रॉस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड कर लेनी है। सिंपली सीवी अपलोड करने के बाद आई हैव अटैच का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे हमें जीमेल जारी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। वो कितनी एप्लीकेशन फ़ी है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे तो आप फिर यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक करोगे। मैसेजेस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इनवॉइस नाम का एक मैसेज नज़र आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको जो है इनवॉइस इशू हो गई है और आपको जो है आपके ईमेल में लिंक रिसीव होगा। उस लिंक के थ्रू जो है आपने 60 यूरो की अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। ये एप्लीकेशन फ़ी जो है आप 30 डेज़ तक सबमिट कर सकते हो। आपके पास 30 डेज़ होंगे सबमिट करने के लिए। वो सबमिट करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी वाला मार्क जो है वो टिक हो जाएगा और आपके फिर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो सक्सेसफुली। अगर आपको इनवॉइस देखनी है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो इनवॉइस आ जाएगी। आप यहाँ पे दोबारा इस पे क्लिक करोगे इनवॉइस पे और आपके पास इनवॉइस सारी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है आपने 60 यूरो जो है वो पे करने हैं उस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन जो है वो सदा पे वगैरह पे भी पे कर सकते हो, जो आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट्स वाले जो है वो ऑनलाइन बैंक्स है। उसके अलावा जो है आप अपने बैंक पे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उसको ओपन करके जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप जो है या फिर ऐसे कर लो कि किसी रिश्तेदार से जो आपका यूरोप वगैरह में रहता है उससे करवा लो, तो आप उनसे भी करवा सकते हो पेमेंट अपने एप्लीकेशन फ़ी की। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपको जो है वो कंफर्म हो कि आप जो है यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा, तो आप कर लो अप्लाई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई जो है सजेशंस है तो वो भी बता सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।